Okay, good morning everyone. So today we are going to start with the chapter 3 of history, Delhi Sultan. So we have already learned about how in the chapter 2 that how Delta became a center of large kingdom. Yes, but you have seen that in the earlier chapter uh, दिल्ली की कहीं पे भी चर्चा नहीं कि how it became an important city. So that is reason behind that is कि because Delhi came into important as a city in the 12th century. Yes, Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of 12th century by the Chauhans, as also referred to as Chamanas of Ajmer. It was under Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples, quaint minted here, called Delhi Wal had a wide circulation. So basically, what does it means? Delhi was the first time when it came. Acha, Delhi Sultan's story of Delhi can be divided into the three kingdoms, for three dynasties. First, Rajput dynasties. Second, uh, Delhi Sultanate, that Muslim dynasties, and the third were the Mughals who came after them. Yes, so Delhi first became capital under the Tomars Rajput. Rajput maybe there were two Rajputs who rule over the Delhi. One was Tomar and one was Chauhan. Tomar Rajput started ruling on the Delhi around before 12th century, at the starting of 12th century, and by the middle of 12th century, Chauhan captured that area and they started controlling them. So among them, there's time in the time of Tomars and Chauhans, Delhi became an important commercial center. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. So एक्चुअली में दिल्ली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेन करने लगा 12th सेंचुरी में. इट वॉज फर्स्ट ruled by the Tomars, then by the middle of 12th century by the Chauhans, and then by the 13th century it was ruled by the Delhi Sultanate, that is the five Muslim kingdoms. Yes, so that time it actually started ruling. The Delhi Sultan built over here many cities that is today is the part of Delhi were Delhi, Delhi, Aikuna, Siri and Jahapanaz, Firuzabad to be included. So this particular table, the rulers of Delhi, it start with Rajput dynasties. Yes, you can see it start with first Rajput dynasties. Under this, one was Tomars and other was Chauhan. Then there were Delhi Sultanate. Delhi Sultanate can be divided into five kingdoms. Yes, Delhi Sultanate can be divided into five Muslim kingdoms. One was early Turkish ruler, then came the Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and then there was the Lodi dynasty. So these five dynasties were known as the मुस्लिम किंगडम्स. दैट इज इनके ही कॉम्बिनेशन को, इन पांच डायनेस्टी के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत. और इस दौरान में दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े चेंज हुए, दैट वी विल सी फर्दर. यस, नाउ ये इंफॉर्मेशंस जो हैं पार्ट्स की, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? सो बेसिकली हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स बाकी चीज़ों से मिलती है. बट इसमें एक बहुत फेमस चीज़ है, दैट इज़ तारीख और त्वारीख. अब
how this Tariq was a written document. How that was prepared? It is given over here. 4 stages in the making of a manuscript. तो फर्स्ट वन प्रिपेयरिंग द पेपर, पहले पेपर्स को प्रिपेयर किया जाता था, देन दे यूज टू राइट द टेक्स्ट ऑन दैट, एंड देन दे यूज टू मेल्ट द गोल्ड एंड पुट इट ऑन द वर्ड्स दैट दे वांट टू हाईलाइट फ्रॉम देम, एंड देन दे यूज टू bind it. So this is how Tariq, the paper, the information building papers, the books were made. Now, who was the writers of Tariq? They were the basically secretaries, administrator, poets and courtiers who recounted events and advised ruler. Or so they don't only write about the rulers, they used to advise the rulers also. Yes, but उनका एक अपना point. अच्छा, this writers were live in the Delhi itself. They were rich because they write the history about the ruler. The ruler used to give them award, and this author की जो वैल्यूज़ होती, जो सोच होती थी, जो एडवाइस भी होती थी, ये जो राजा को देते थे अपने रूलर को, दैट वुड बी बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. नाउ बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, यू कैन सी. सो व्हाट इज़ बर्थ राइट? यानी जन्म सिद्ध अधिकार, कि अगर राजा का बेटा है तो वो राजा ही बनेगा, मंत्री का बेटा है तो मंत्री बनेगा. तो इस ऐसी सोच पे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली सोच पे ये लोग फोकस करते थे. नाउ वी सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्टिंक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उस टाइम पे. अर्ली टर्किश रूलर्स में से थर्ड जो रूलर है, आप टेबल में देखोगे तो, दैट वाज इतुतमिश. इतुतमिश के बहुत बच्चों में से उसने अपनी डॉटर को, सो वी विल रीड, इन 1236 Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. The chronicle of the age, Mihan-i-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. So because of that, she was removed from the throne in 1240. So basically what happened कि by the end इतुतमिश के बाद there was रज़िया सुल्तान को उन्होंने अपने बाद सुल्तान बनाया, बट बीइंग अ लेडी वहाँ पे जो लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि एक लेडी हमको रूल कर सकती है. येस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग केपेबल शी वॉज नॉट अलाउड एंड शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, यानी उन्हें से अपने पद से हटा दिया गया इन दी 1250. मिनहाज आई सिराज, जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा है कि उन्होंने रिकोगनाइज किया कि वो मंत्री थे इतुतमिश के, तो उन्हें पता था कि यस रज़िया वॉज मोर केपेबल इन कंपैरिजन टू हर ब्रदर्स, बट स्टिल ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. सो what was the reason? You might read this paragraph, this box which is given, you will come to know. Okay. Now we will understand from garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. यानी by the end of early Turkish ruler, end तक आते आते एंड जब खलजी आए उसके बाद तुगलक आए, तो वो एक्सपेंशन कैसे हुआ दिल्ली का, दैट वी विल बी सीइंग. सो इसको स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन. व्हाट डू मीन बाय हिंटरलैंड? हिंटरलैंड इज़ अ प्लेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है. दैट सच अ प्लेस और सिटी इज़ नोन एज द हिंटरलैंड. और गैरिसन टाउन इज़ अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, यानी एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से घिरा हुआ है सोल्जर से, और सोल्जर्स ने उस एरिया को प्रोटेक्ट किया हुआ है. नाउ वी विल कम टू टॉपिक में क्या दिया है कि पहले जो थे अर्ली टर्किश, जो जब दिल्ली स्टार्ट हुआ रिकॉग्नाइजिंग एज ए कमर्शियल सेंटर, तो वो वहाँ पे जो राजा बने वो सिर्फ और सिर्फ अपने किले तक सीमित रहते थे. दे डोंट यूज टू एक्सपैंड देमसेल्फ, और वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते थे विद दी गैरिसन्स, यानी सोल्जर्स के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्टेड. बट ऐसा क्या हुआ कि ये गैरिसन टाउन, यानी ये जो प्रोटेक्टेड एरिया था, ये धीरे धीरे एम्पायर में बदला. सो
In the early 13th century, the control of Delhi Sultan really went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. तो स्टार्टिंग में इस एक्सपेंशन से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे दिल्ली के सुल्तान्स कि क्योंकि वो हिंटरलैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जहाँ से गुड्स और सर्विसेज आ रही थी, तो वो डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज पे कब्जा नहीं कर सकते थे। तो वो किस चीज़ पे निर्भर करते थे, या तो कोई ट्रेड के ऊपर या ट्रिब्यूट यानी किसी ने आके अगर गिफ्ट दे दी, और दी प्लंडर यानी चोरी करके या किसी और तरीके से उस पर कब्जा कर लिया। तो यस, और फिर अपने किले में रहते हुए कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यानी अपने किले में रहते हुए और दूर जो उनके और जहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया है उसको कंट्रोल करना एक लिमिटेड एरिया में रह के इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर देम। उसी टाइम पे मंगोल्स जो थे अफ़गानिस्तान से उन पे अटैक करने लगे एंड उनके ही अपने कई मंत्री थे जो रिबेल करने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सुल्तान्स जो थे उस टाइम पे फेस कर रहे थे। तो उसी टाइम पे अर्ली टर्किश रूलर के जो लास्ट रूलर्स थे गियासुद्दीन बलबन, उन्होंने सोचा कि नहीं अब हमें एक्सपैंड करना चाहिए अपने आप को, और उनके एक्सपेंशन को आगे बढ़ाया अलाउद्दीन खलजी ने एंड मोहम्मद तुगलक ने। यस, सो वो स्टेप्स क्या थे जो उन्होंने लिए? सो द फर्स्ट स्टेप वाज इंटरनल फ्रंटियर, यानी 2 स्टेप में वो लिए गए, इंटरनल फ्रंटियर, एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है? वो जगह यानी पहले उन्होंने जो उनका गैरिसन टाउन था जहाँ पे वो रह रहे थे, जिस किले में रह रहे थे उसके आसपास जो एरिया प्रोटेक्टेड था, उस एरिया को, उस आसपास के एरिया पे कब्ज़ा जमाना जो उनके रीच में था उस पे ज़्यादा फोकस किया। दैट इज़ नोन एज द इंटरनल फ्रंटियर, यानी उनकी बाउंड्री की चीज़ें और बाउंड्री के आसपास की चीज़ें। एक्सटर्नल में उन्होंने उसके आगे जाके जब लोग साउथ की तरफ बढ़े तब हुआ। सो इंटरनल फ्रंटियर पे कैप्चर करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए? सो पहला स्टेप लिया, सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन, यानी उन्होंने कब्जा किया गैरिसन टाउन के हिंटरलैंड्स पे, यानी जहाँ जो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सबसे पहले कि गुड्स और सर्विसेज की, उन्होंने उस पर अटैक किया। देन उन्होंने जो फॉरेस्ट थे गमना यमुना डोब के पास, उन फॉरेस्ट को कैप्चर किया, उसको क्लियर करवाया और वहाँ से हंटर गैदर और पैस्टरलिस्ट को हटा दिया गया। एंड दीज लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर, और उन्हें वहाँ पे इंकरेज किया गया टू यूज़ दिस लैंड फॉर द कल्टिवेशन, और इसकी वजह से वो जगह अब धीरे धीरे टाउन्स में बदलने लगी। तो दिस वॉज द इंटरनल फ्रंटियर स्टेप दैट दे हैव टेकन। एक्सटर्नली उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री को भेजना। अब अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन चीज़ों को किया। एक्सटर्नल में गियासुद्दीन बलबन का काम उसने नहीं किया था, एक्सटर्नल अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने किया था। उन्होंने अपनी मिलिट्री को साउथ की तरफ भेजना शुरू किया। एंड साउथ में वो आर्मीज़ क्या करते थे, वहाँ पे जाके एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स और जो प्रेशियस स्टोन्स होते थे, मेटल्स होते थे, उनको कैप्चर करना शुरू किया। Yes, so by the end of the Muhammad Tughlaq's region, 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies, seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a territory? So क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक के टाइम तक आते हुए, है ना, यानी जब से शुरू हुआ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रूलर ऑफ द अर्ली टर्किश रूलर्स, वहाँ से शुरू होते 150 साल हो चुके थे मुस्लिम सल्तनत को दिल्ली पे राज करते हुए। तो बहुत बड़ा एक एरिया उन्होंने दिल्ली और दिल्ली के राउंड और इवन साउथ का अपने अंडर कैप्चर कर लिया था। बहुत सारी टैक्स के नए रूल्स निकाल दिए थे, बहुत कुछ हो गया था। बट वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कितना इफेक्टिवली कर पाते थे। एंड विद दिस वी सी हियर यू कैन सी इन दी मैप
कि कैसे दिल्ली से और धीरे धीरे 13th सेंचुरी में उन्होंने रणथंभोरे पे किया, यस, देन चित्तौड़ पे, देन ये फिर कारा, फिर धीरे धीरे वो कैसे, यस, बाय द मिड ऑफ द 13th सेंचुरी वो पूरे साउथ की तरफ बढ़ते चले गए. सो विद दिस वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaq. So here we will see the comparison कि अलाउद्दीन खलजी, और बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के रूल्स की बात कर रहे हैं. तो विल सी दी कंपैरिजन कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेट किस तरीके से किया और क्या सिमिलैरिटीज़ थी या क्या डिफरेंस थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में. So this we will continue in the second part of the video. Yes, that's it with this first part. Okay, you can, before ending the video, here it is given about the masjid. Obviously it was Muslim Sultanate. So they, as we know कि masjid is a place where they worship for their Allah. Yes, so उन्होंने अपने आप को strong करने के लिए they built many masjids in the area. यस, ताकि लोगों को टू प्रोटेक्ट इस्लाम्स एंड मुस्लिम. सो उन्होंने जगह जगह जहाँ पे भी कैप्चर करते गए उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया ताकि वो खुद को मजबूत रख सके. और कई सारे आज की डेट पे भी मस्जिद उसी टाइम के बने हुए हैं जो बड़े बड़े फेमस हैं. यस, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट पार्ट.